data in a spreadsheet. So let us start. So how you can do the editing? आप सबको पता होगा editing means to do the changes. तो हम spreadsheet में कैसे changes कर सकते हैं data के related? So let us start. तो एंटरिंग नंबर्स, आप यहाँ देख सकते हो कि मैं एंटर कर रही हूँ नंबर्स. यस, यू कैन एंटर द नंबर्स, बट हाँ, आपको नंबर एज अ टेक्स्ट लेना है तो उसके लिए भी एक अलग वे है. सो जस्ट सी ओवर हियर दैट आई एम शोइंग. यहाँ आप कैसे नंबर्स एज अ टेक्स्ट भी ले सकते हो. अपोस्ट्रोफी जो है वो आगे लेना है. इट वाज बाय मिस्टेक. मैं अभी अब फिर से करके दिखा रही हूँ. देखिए यहाँ इट विल कम ओवर देयर लेफ्ट अलाइन. बाय डिफॉल्ट नंबर्स आते हैं राइट अलाइन में, राइट. आप देखिए यहाँ राइट अलाइंड है, बट अगर आप अपोस्ट्रोफी दे देते हैं आगे, देन इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड एज अ टेक्स्ट. इट विल बी एक्सेप्टेड एज अ टेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज डेट ऑफ बर्थ. अगर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, देन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नंबर्स, लेकिन उसे कैसे लिखा जाता है, डिफरेंट वेज है उसके लिए. तो आप देखिए जैसे मैंने लिखा है, राइट, यू कैन सी द फर्स्ट वे, देन वी आर हैविंग द अनदर वे. इन दैट वी कैन गिव द स्लैश ओवर देयर. आप देख सकते हो कि मैं स्लैश कर रही हूँ, right, with the slash. So there are different ways to write the date. Okay, तो आप different way में आप date लिख सकते हो. Next, text and label. अब कैसे आप text और label दे सकते हो? देखिए text लिखना है. Yes, you can write it with the numbers. Numbers and text दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हो. Then you can see first of all text and after the numbers, तो वो भी accept करेगा as a text. Okay. फिर देखिए जैसे मैं लिख रही हूँ, you can see that 17 to 23, so that is also a part of text. Okay, देख सकते हो ये फर्स्ट मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, so that is with the number. अगर आपने नंबर लिखा और उसके साथ टेक्स्ट लिखा, then also it will count as a text. If you have taken text and the numbers together, then also it will count as a text. But here you can see that I have given the hyphen sign, तो hyphen sign के साथ भी वो accept कर रहा है, and that is count as a text. Now entering formulas, there are different ways to enter the formulas also. You can see first you have to give the equal to sign. आपने देख ही लिया होगा मैंने equal to sign दिया हुआ है, right? With that I have given the function, the addition of that I have done 10 plus 20 plus 30, and you got the answer. Okay, so this way you have to do it. You have to follow the rules, that is equal to sign. अगर आप equal to sign नहीं दोगे तो वो formula नहीं count होगा. नेक्स्ट इज एडिटिंग द सेल कंटेंट. अब कंटेंट को आप एडिट कैसे कर सकते हो? देखिए यहाँ राइट वाला दिख रहा है, सो दैट इज टू प्रेस एंटर की, और यू कैन गो विद द राइट, तो वो एक्सेप्ट होगा. इफ यू वांट टू कैंसिल इट, देखिए मैंने लिखा एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल गो फॉर द क्रॉस, तो दैट इज काउंट एज अ कैंसिल. ओके, तो एस्केप की भी यूज कर सकते हो, द शॉर्टकट की. You can say the keyboard key, enter key and escape key. Enter key is to accept and escape key is to cancel. Overwriting are of different types. यहाँ आपको दो टाइप के overwriting, यहाँ आप जैसे इसके ऊपर ही आपने लिखना शुरू कर दिया, that is called overwriting. वही सेल के कंटेंट के ऊपर आपने फिर से information technology लिखा. You just see over here I've written computer and now it is turned to information technology. So that is called overwriting. Okay, by going to that cell. Next is partial modification, means in that somewhat you want to do the changes. आपको कुछ changes ही करने हैं, not the whole thing. Okay, like computer you have written, now I want to write computer science. So I can make a double click in the cell. You can see the cursor is over there, right? And I have written computer science. Then next way, that is by pressing F2 key also. आप F2 key press करेंगे the shortcut key, so it will come inside the cell but at the ending. Okay, so you can place it anywhere the cursor and you can do the changes. And the third way is that the formula bar. In the formula bar also you can write it, you can do the changes. Removing data, अब remove कैसे करेंगे? So you know very well, clear, in that clear all, यहाँ आपको दिख रहा होगा clear all, then clear content, so that will also clear that content. आप देख सकते हो
I'll just click. You can see that my content is not there, right? Now if I'm clicking on clear all, then also the content is not there. There are many other options also. Even you can go by delete key. मैंने delete key press किया, so you can see that it is being deleted. Okay, now entering formula, equal to sign. I have already told you that you have to give the equal to sign. Okay, अब देखिए मैं equal to 60 plus 70 plus 80 मैंने लिखा. You will get the output over here. Press enter key. तो आपका आंसर आ गया. ओके, एंड इवन यू कैन सी इट ऑन द फॉर्मूला बार. आपको यहाँ फॉर्मूला बार पे दिख ही रहा होगा कि यू कैन सी द फॉर्मूला. इफ एनी पर्सन इज नॉट डूइंग द फॉर्मूला, देन वी हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूला किया है कि नहीं किया है. तो आई कैन गो टू द फॉर्मूला बार एंड आई कैन सी इट whether you have done or not. Now यूजिंग मैथमेटिक ऑपरेटर्स, आप सबको पता ही होगा कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से यूज होते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड एक्सपोनेंट, दैट इज पावर, राइट. एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वो आप यूज करते हैं. अब प्रेसिडेंस मीन्स पहले क्या आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट विल कम द फर्स्ट स्टेप्स. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आप जानते ही होंगे. इट इज देयर इन मैथ्स ऑल्सो. आपके मैथ्स में आता है कि आप पहले लेंगे एक्सपोनेंट, सॉरी, यू विल टेक इट द पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस को ओपन किया जाता है, आफ्टरवर्ड्स द एक्सपोनेंट, देन डिविजन और मल्टीप्लीकेशन, एंड एट द लास्ट एडिशन और सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बेसिक फॉर्मूलाज देखिए, बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं, आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल सम फंक्शन, सिंपल वे में पहले मैं एडिशन कर रही हूँ, देखिए प्लस साइन लेकर, राइट. देन यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग द सेल रेफरेंस. अब मैं सेल रेफरेंस यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर क्लिक करके, राइट. सो बोथ द वेज यू कैन डू इट, whether you can write it and you can do. and this is the function, that is sum function. तो sum function से भी हमें टोटल मिल सकता है, so we can get the output over there, right. तो हमें सम फंक्शन भी हमारे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, राइट. नेक्स्ट नाउ यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूलाज. अब कंपाउंड फॉर्मूलाज, उसमें आपने देखा कि वो सिंपल फॉर्मूला प्लस 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 करके हमने ले लिया. यहाँ कंपाउंड यानी दो ऑपरेटर्स एक साथ लेकर, तीन ऑपरेटर्स, राइट. यू कैन टेक टू ऑपरेटर्स, वन ऑपरेटर, थ्री ऑपरेटर्स टुगेदर. like you can see for the percentage I have done, right. आपको दिख ही रहा होगा परसेंटेज के लिए I have taken total, multiply and then 100 and divided by the number of subjects marks 200, right. टू सब्जेक्ट्स के 200, तो वो आप कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. यूजिंग रेंजेस. अब रेंज कैसे आप यूज करोगे, तो आप जैसे एवरेज निकालना है, सो यू विल टेक इट, यू विल डू द सिलेक्शन. तो ये देखो B2 to C2 इज अ रेंज, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट इट, मेरा पहला वाला वीडियो आप देख सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन, उसमें आपको मिलेगा. सो प्लीज गो टू माई चैनल रचना जादव. नाउ यूजिंग सिंपल फंक्शंस. अब सिंपल फंक्शंस आप कैसे यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि आपको फंक्शंस यानी क्या. तो फंक्शंस मीन्स इट इज अ प्री डिजाइन फॉर्मूला टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. दोनों टाइप के आपको फंक्शंस करने हैं, तो आप कर सकते हो, राइट. एंड दैट ऑल्सो वेरी इजीली, बिकॉज इन दैट द गाइडेंस इज ऑल्सो गिवन. आपको गाइडेंस भी मिलता है उसके रिलेटेड. नाउ इसमें फंक्शंस एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फॉर्मूलाज. यानी आपको पहले से ही फंक्शन पता होंगे, तो फॉर्मूला में कोई भी गलती होने के चांसेस कम है. देयर विल बी नो round type of formula, you will not do it over there, right. So this is the part. Next, they accept the arguments and return values. आप देखना कोई भी functions आप जब use करते हो, in that they have given the arguments and the return values. मैं आपको जब practically करके दिखाया था, मैंने आपने देखा होगा कि they are showing the syntax and with that what you have to do. okay, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. फंक्शंस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट. दो चीजें होती है, स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट. तो स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन इक्वल टू करके जो फंक्शंस का नाम है वो, एंड आर्ग्यूमेंट इन दैट यू विल सिलेक्ट द नंबर, हो सकता है कोई रेंज, हो सकता है कोई वैल्यूज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है,
एंड मैनी मोर. नाउ रूल्स, हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जब हमें फंक्शंस एंटर करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इक्वल टू साइन. सेकेंड, द फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एट एक्सेल फंक्शन. ऐसा ना हो कि आप अपना ही खुद का फंक्शन लेकर आ जाओ, राइट. Whatever the built-in functions are there, that only you will use it, or you can go with the formulas, but you cannot create your own functions over there, right. Next is the function name must be followed by opening and closing parenthesis. आप देखना है equal to sum मैंने लिखा था, you can see over here also equal to sum, with that the parenthesis will come. You have to just select the range. आपको सिर्फ range select करना है. Parenthesis contain the arguments within it. तो आपको argument मिल गया कि ये cell reference है, ये cell reference हमें total करना है. I want to do the total of it. Next, some important functions. Already I have explained, then also we will just see over here कि हमें कौन से functions करने हैं, right? तो देखिए, first of all equal to sum, right? So sum is used for the total. आपको range select करनी है, that is the argument, and then press enter key. So you will get the output. आपका output मिल जाएगा. Now average function that is used for arithmetic mean भी हम बोलते हैं, or you can say the average of any of the data. Result में भी use हो सकता है, right? Like I have done it for the 2 subject. If it is out of 100, अगर 100 के मार्क्स में है तो एवरेज उसका मिलेगा, अदरवाइज नहीं. अगर 50 मार्क्स का है देन यू विल नॉट गेट इट. नेक्स्ट इज द फंक्शन दैट इज काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन से आप काउंट क्या कर सकते हो, यू कैन काउंट इट द सेल्स इन विच नंबर्स आर रिटन. सेल्स को वो काउंट करेगा, नॉट द टोटल ऑफ द नंबर्स, राइट. वो सेल्स को काउंट करेगा. देखो यहाँ कितने सेल्स हैं हमारे पास, तो 6 सेल्स है, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 6, राइट. इफ इट इज हैविंग टेक्स्ट तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, सो काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द सेल्स, राइट, in which numbers are written. Next after that we are having the max function, that is maximum value. यानी ये जो हमारा रेंज है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, who is having the maximum marks. तो यहाँ दिख रहा है 100, right. तो आपका आउटपुट क्या आएगा, you will get the output 100. Next is min function, that is minimum. Okay, so सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, the score of minimum value, तो आप वो ले सकते हो. तो min min, right, then bracket, that is parenthesis, and in that the argument, right. तो मेरा argument ये है पूरा, right. So I can select it and then parenthesis close and press enter. तो आपको minimum value मिल जाएगी. Okay, hope you all have understand. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.